السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدا ایم ایس ماڈل انگلش میڈیم یو پی اسکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اور خاص کر اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین شہر یعنی شہر بدویل کے ذمہ دار حضرات، ان سب کی آمد پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ یہ ہماری ہدا ایم ایس اسکول کا سالانہ اجلاس ہے۔ اس میں خصوصی طور پر خصوصی مہمان کے اعتبار سے ہمارے درمیان جناب شیخ اللہ بخش بھائی، اور اسی طریقے سے ہمارے مولوی بھائی، اور اسی طریقے سے مہمان خصوصی خواجہ ولی بھائی اور عبدالستار بھائی اور رسول بھائی، اور جتنے بھی اس میں شرکت فرمائے ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری ماں بہنوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ان 30 کروڑ آبادی والی قوم کے کتنے بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ دینی اعتبار سے صرف 2.5%، 2.5% بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ اور باقی بچے کہاں جاتے ہیں؟ باقی بچے یقیناً وہ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ قوم کے بچوں کو سب کو نہ عالم بنانا ہے، نہ سب کو عالم بنانا فرض عین ہے۔ سب بچوں کو عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ کے حد تک علماء کی تعداد مدرسوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر قوم میں ایک عالم دین اتنا علم جاننے والا ہو کہ لوگوں کو صحیح رہنمائی کر سکے اسلام کی، دین کی، دینی اعمال کی، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اور یہ جو پوری قوم اسکولوں کے ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے، جس ماحول میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی قوم یعنی ہمارے بچے، ہماری نئی نسل 2.5% دینی مدرسوں میں ہے۔ باقی جتنے بھی بچے ہیں 97.5% بچے جو ہے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ کس ماحول میں جا رہے ہیں اور کن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ایمان کا کیا ہوگا، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے اندر دین کی بقا کیسے ہو؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری سرکاری اور جتنے بھی پرائیویٹ اور سرکاری اسکول ہیں، اس میں جو تعلیمی نظام ہے، اس میں جو سلیبس ہے، وہ عملی طور پر دینی لائن سے ناکارہ ہے۔ یعنی دینی لائن کا کوئی سلیبس وہ اسکولوں میں نہیں ہے۔ دین کا نام تو برائے نام بھی ہم مشکل ہی سے آتا ہے، اور دین کا ماحول تو وہاں ہے ہی نہیں۔ یعنی جو جتنے بھی اسکول ہیں، سرکاری گورنمنٹ کے اسکول ہوں یا پرائیویٹ کے اسکول ہوں، بہت سارے اسکولوں میں جو ہماری قوم کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر اکثر جو ہے دینی ماحول نہیں ہے۔ دین کا نام تو برائے نام بھی اب مشکل سے ہی آتا ہے۔ دین سکھانے کا کوئی ذریعہ ان اسکولوں میں نہیں ہے۔ اس لیے اس قوم کی نئی نسل کو مسلمان بنائے رکھنا اب ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے۔ ورنہ ہمارا میڈیا، سرکاری اسکولوں اور تعلیمی اداروں کا ماحول نہ صرف یہ کہ سچے پکے مسلمان تیار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے ماحول میں جا کر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں ان کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اس نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نظر نہیں آتا کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں۔ یہ نئی نسل کے جو بچے ہیں معصوم، آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، اور ان کے اندر ایمان کیسا آنا، دین کیسا آنا، اسلامی ماحول کیسا لانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر محلے میں ایک ایسا اسکول قائم ہو اسلامی ماحول کا۔ بچہ اسکول میں داخل ہوتے ہی سلام کے ساتھ داخل
हो, जब स्कूल में खाना बैठे तो सुन्नत तरीके पर खाने वाला बन जाए, जब आराम का तकाजा आया तो सुन्नत तरीके पर, जब पानी पीने लगे तो सुन्नत तरीके पर पानी पीने वाला बन जाए। हमको इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, बल्कि असल तैयारी आखिरत की है हमकी। तो मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों, ऐसी माहौल के स्कूलों का होना बहुत जरूरी है। और बदवेली का हिसाब लीजिए कि मुस्लिम आबादी कितनी है बदवेल के अंदर, और कितने बच्चे स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे बदवेल शहर में एक ये नया स्कूल जो इस्लामी माहौल का कायम हुआ है अल्लाह के फजल से। जरूरत इस बात की है कि हर बच्चे के अंदर दीन आए, दीनी माहौल में वो जिंदगी गुजारे और ईमान की फिजा में उसकी परवान चढ़े। तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसे इस्लामी माहौल के स्कूल जो है जगह जगह पर कायम किए जाए, ताकि उनकी आखिरत भी बने और दुनिया भी बने। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जो नई नस्ल हमारे शहर के काफिलाना फिस्को फजूर और कुफ्र शिर्क के माहौल के स्कूलों में परवान चढ़ रही है, उनके दीन और ईमान की हिफाजत की जिम्मेदार कौन? तो उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। उसके लिए हम इस्लामी माहौल की स्कूल कायम करना जरूरी है। इस वास्ते अब तो जरूरत इस बात की है कि हमारे बड़े और हमारे शहर और जिम्मेदार पूरा इस्लामी स्कूल पर जोर दें, इस्लामी स्कूल कायम करने पर अपना वक्त लगाएं और इस्लामी स्कूल कायम करें। इस्लामी स्कूल का मतलब यह है कि यहाँ अंग्रेजी जबान को भी मुसलमान बनाया जाए और असली उलूम व फनून को मुशर्रफ व इस्लाम करके पढ़ाया जाए। जैसे ये फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, यानी इस तरह से खुदा बिल्ली ये बातें हम दीगर स्कूल में सीखते हैं, तो हमारे ऐसे ही स्कूल कायम किए जाए जिसमें जो है अंग्रेजी को मुसलमान बना दिया जाए। तो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि ये फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, इस तरह से इस्लाम में वैसे भी दीनी तालीम और दुनिया की तालीम की तफरीक कभी नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से इस्लाम हटकर नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी शुरू में इस्लाम ही से आई है। बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े साइंसदान इस्लाम ही के अंदर तैयार हुए हैं, इस्लाम ही से रोनुमा हुए हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक की तारीख, पूरी उम्मत की तारीख में आप देखेंगे, आलिम बने या इंजीनियर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने या डॉक्टर बने, इस तरह से इस्लामी माहौल भी मिलेगा और आगे चलकर उनकी जिंदगी भी तरक्की होगी। तो मेरी माँ बहनें, अक्सर हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दीनी माहौल में लाना, दीनी माहौल में परवान चढ़ाना, क्योंकि आजकल के स्कूल का हिसाब ऐसा है कि धीरे दूसरा बच्चा, दूसरी औरत का बच्चा वहाँ आए, स्कूल जा रहा था, वो भी पूरी स्कूल की तैयारी के साथ वहाँ जा रहा था, तो माँ पर नजर पड़ी। माँ कहाँ थी? बोरवेल के पास पानी पकड़ रही थी। तो बच्चा माँ को देखा, कई बेल्ट लगाया हुआ था, गुड मॉर्निंग बोला और बाय बाय बोल के वहां से निकल गया। और ये माएँ जो है फख्र से कहने लगे, देखो मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, बड़ी फख्र से कहने लगी। इतने में तीसरी माँ, जो तीसरी औरत वहाँ थी, उसका बेटा मदरसे के लिए यानी पूरी तैयारी करके किताबें सीने से लगाकर और सुन्नत लिबास पहनकर उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। जब माँ की नजर बच्चे पर को माँ की नजर पड़ी, तो बच्चा जो है माँ को सलाम किया और वहाँ करीब गया और माँ से कहा कि आप हटो, मैं पानी भरता हूँ। बच्चा खुद जो है पानी भरा उसमें और पानी खुद लेकर माँ को साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मालूम था कि माँ की खिदमत फर्ज है, उसको मालूम था कि माँ जो है माँ के कदमों तले जन्नत है, उसको मालूम था कि अल्लाह माँ की रजा अल्लाह की रजा में है। तो मेरे माँ बहने, तो तरबियत ऐसी होती है दीनी तालीम की। और दुनियावी तालीम की तरबियत कैसी थी? बच्चे को माँ को देखकर आगे बढ़ गए। और जब ये बच्चा मदरसे को जाने वाला बच्चा, उसकी किताबें सीने पर थी, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनकी किताबें पीठ पर थी। इसका मतलब ये है दुनिया को पीछे छोड़कर जाना है, दुनिया हमें हमारे साथ आने वाली नहीं। और जिसकी किताबें सीने पर थी, अल्लाह का कलाम लेकर निकल पड़ा था। इसका मतलब क्या है? ये दुनिया में भी कामयाब करेगी और मरने के बाद भी आखिरत तक ये किताबें उसका साथ देंगी। तो मेरी माँ बहनें, हमें जरूरी है कि हमें ऐसे स्कूल में अपने बच्चों की तालीम दें कि जहाँ दीन भी हो और दुनिया भी हो। सबसे पहले माँ बाप की अज़मत और शफ़क़त और माँ बाप का एहतराम, बड़ों का अदब व क़िता और पानी पीना, खाना सोना, ये सारे माहौल, नमाज का तरीका, ये सारी चीज़ें
बचपन ही में अगर सीख लिया तो बड़े होने के बाद वो जो है ईमान को अपने ईमान की हिफाजत खुद को खुद करेगा, जहाँ कहीं भी चला जाए। तो मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना नहीं चाहता, बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं और खासकर उलमा इकराम हैं, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हम जो है इस स्कूल का सालाना इजलास है, इख्तिताम पर है, ये पहला साल है स्कूल का, और माँ बहनें तालीमी मुज़ाहरा भी करें बच्चों का, देखें और फैसला करें कि अपने बच्चों को दीन भी मिलना है और दुनिया भी मिलना है। तो ऐसे माहौल की स्कूलों में तालीम देंगे तो दुनिया व आखिरत संभलेगी, माँ बाप का अदब व क़िदा करने वाले बनेंगे, दोनों जहां में कामयाब होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को खुद स्कूल में दाखिला दिलवाएं और दूसरे अपने पड़ोस में भी बताकर जो है ऐसे इस स्कूल में जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दाखिला दिलाकर दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाएं।